In this session, we will discuss about various central investigation agencies in India such as ED, CBI, NIA. What is CBI? Primary Investigation Police Agency. CBI is the primary investigating police agency in India which provides assistance to the Central Vigilance Commission and Lokpal. सीबीआई इंडिया के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है. Drive its power to investigate from Delhi Special Police Establishment at 1946. It is not a statutory body, but drive its power to investigate from the Delhi Special Police Establishment at 1946. सीबीआई को जो पावर गिवन की गई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946 के अकॉर्डिंग गिवन की गई है. CBI functions under the Superintendence of the Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievance, Government of India, which falls under the Prime Minister's office. सीबीआई जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सुपरिंटेंडेंस के अकॉर्डिंग करती है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर आता है और ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आती है. Coordinate investigation on behalf of Interpol member countries. CBI is also a nodal police agency in India, which coordinate investigation on behalf of Interpol member countries. High conviction rate. Its conviction rate is high as 65 to 70%, and it is compared with the best investigation agencies in the world. CBI का conviction rate very high है, about 65 to 70% इसका conviction high है. That is why it is known as best investigation agencies in the world. Prevention of Corruption Act. However, superintendents for investigations for offences under the Prevention of Corruption Act vest with the Central Vigilance Commission. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस इसको परफॉर्म करने होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुपरिंटेंडेंट्स के अंडर ही इसको फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई. सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है. Special Police Establishment at 1941 in British India during the period of World War II. A special police establishment was constituted in the 1941 in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery and corruption in the war-related procurement. ब्रिटिश इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट में कुछ ब्राइबरी एंड करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस को इंक्वायर करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया था. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एट 1946. Later, it was legalized as an agency of the government of India to investigate into allegations of corruption by enacting the Delhi Special Police Establishment at 1946. बाद में करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लीगलाइज एजेंसी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इट मीन्स पहले स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1941 में, इसको बाद में लीगल एजेंसी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है सो दैट करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके. और इसके लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 इनेक्ट किया गया था. CBI was recommended by Santhanam Committee. The establishment of the CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption 1962 and 1964. इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड 1962 में संतनाम कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी. इस कमेटी ने करप्शन के प्रिवेंशन के लिए सीबीआई का रिकमेंडेशन गिवन किया. In 1963, the CBI was established by the Government of India to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating and embezzlement, and social crime, particularly of hoarding, black marketing, and profiteering in essential commodities, having all India and interstate ramification. 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीबीआई इस्टेब्लिश कर दी जाती है सो दैट इंडिया में डिफेंस से रिलेटेड सीरियस क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, हाई प्लेसेस में जो भी करप्शन होते हैं इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकें, सीरियस फ्रॉड,
चीटिंग एंड एम्बेजलमेंट एंड सोशल क्राइम, इन सभी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर सीबीआई एस्टेब्लिश की गई। CBI scope broadened. Later on, CBI started investigation in conventional crime like assassinations, kidnapping, hijacking, crime committed by extremists, etc. बाद में सीबीआई के स्कोप को ब्रॉड कर दिया जाता है। अब इसको कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज क्राइम लाइक असैसिनेशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, इन सभी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गिवन कर दी जाती है। हाउ इज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड? सीबीआई का डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई का डायरेक्टर आईजी रैंक का ऑफिसर होता है जो कि सीबीआई के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिल 2014 द सीबीआई डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीएसपीई एक्ट 1946। 2014 तक सीबीआई का डायरेक्टर को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता था। इन 2014 द लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। 2014 में लोकपाल ने सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की, कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। कमेटी was headed by प्राइम मिनिस्टर, अदर मेंबर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। इस कमेटी का जो हेड होगा वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा। अदर मेंबर लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड सीजेआई इसके अदर मेंबर होंगे। इट मीन्स इस कमेटी के अंदर टोटल 3 मेंबर होंगे। होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर एलिजिबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होम मिनिस्ट्री सबसे पहले कुछ नेम प्रपोज करती है और ये जो नेम प्रपोज किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए फॉरवर्ड किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग prepare the final list on basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti-corruption cases and send it to the committee। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करता है। इस लिस्ट से उसी एलिजिबल कैंडिडेट को चूज किया जाता है जो सीनियर है, जिसके अंदर इंटीग्रिटी है एंड एंटी करप्शन केसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है। उसी मेंबर को नेम फॉरवर्ड किया जाता है कमेटी की बिफोर। टेन्योर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय सीबीसी एक्ट 2003। सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर 2 ईयर फिक्स किया गया और ये टेन्योर यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है। Tenure extension. In November 2021, the President promulgated 2 ordinances to allow the Center to extend the tenure of the directors of the CBI and the Enforcement Directorate from 2 years up to 5 years। नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस 2 ऑर्डिनेंस यहाँ पर इशू किए थे। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया गया कि वो सीबीआई एंड ईडी के टेन्योर को 2 ईयर्स से अब 5 ईयर्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई। सीबीआई किस टाइप के केसेस को हैंडल कर सकता है? नंबर 1 केसेस रिलेटेड टू करप्शन। नंबर 2 इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स। नंबर 3 इंक्वायरी इनटू स्पेशल क्राइम्स। नंबर 4 शो मोटो केसेस। नंबर 1 cases related to corruption. CBI investigate the cases under the Prevention of Corruption Act against public officials and the employees of central government, public sector undertakings, corporations or bodies owned or controlled by Government of India। CBI प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आने वाले सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पब्लिक ऑफिसर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं इनके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन एलिगेशंस पुट किए गए हैं देन सीबीआई इसका इंक्वायरी कर सकता है। नंबर 2 इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स। इट इन्वेस्टिगेट मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स इंक्लूडिंग क्राइम रिलेटेड टू फेक इंडियन करेंसी नोट्स, बैंक फ्रॉड एंड साइबर क्राइम, import export and foreign exchange violations, large scale smuggling of narcotics, antique cultural property and smuggling of other contraband items, etc. Number 3 inquiry into special crimes।
It investigates serious and organized crime under the IPC and other laws on the request of state government or on the order of the Supreme Court and High Court. स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कुछ अदर इश्यूज सच एज टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, इन सभी इश्यूज से रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन इसको करने की पावर गिवन है। नंबर 1, श्योमोटो केसेस। सीबीआई कैन श्योमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन यूडी। यूडी में अगर कोई ऑफेंस किया जाता है देन सीबीआई को ये पावर गिवन की गई है, वो श्योमोटो टेकिंग कर सकती है। प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। The central government can authorize CBI to investigate a crime in a state, but only with the consent of the concerned state government. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर क्राइम से रिलेटेड किसी एक स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है देन उसके लिए पहले स्टेट से परमिशन टेकिंग करना होगा। नॉट नीड प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई किसी भी स्टेट के अंदर विदाउट स्टेट परमिशन इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट established on May 1, 1956, operate under Department of Revenue, Ministry of Finance, headquartered in New Delhi. ED primarily enforces prevention of money laundering Act 2002, foreign exchange management Act 1999, and fugitive economic offenders Act 2018. इन 3 एक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ईडी को करना होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड फ्यूजिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। स्पेशली ये जो एजेंसी है ये फाइनेंस एंड मनी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट appointed by the central government on the recommendation of a committee chaired by CBC। इन्फोर्समेंट का जो डायरेक्टर होता है वो सीबीसी के द्वारा चेयर की गई कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। टेन्योर, द इनिशियल टेन्योर इज 2 years with a possible of up to 3 annual extensions for a maximum of 5 years। इनिशियली इसका जो टेन्योर होता है 2 years का होता है, बट 3 मैक्सिमम एक्सटेंशन गिवन किए जा सकते हैं एंड मैक्सिमम 5 years के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ऑफिसर्स ऑफ ईडी। In ED, recruitment of the officers is done directly and drawing officers from other investigation agencies। अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट ईडी के अंदर किया जा सकता है। इट कंप्राइज ऑफिसर्स ऑफ आईआरएस, आईपीएस एंड आईएएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर एंड पुलिस। रीजनल ऑफिसेस। ईडी हैज 5 रीजनल ऑफिसेस एट मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। फंक्शंस ऑफ ईडी। ईडी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ईडी मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, फंक्शंस इन स्टेट कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया। ईडी या मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस किए गए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड मैटर को इन्वेस्टिगेट ये कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। एनआईए NIA is India's primary federal counter-terrorism law enforcement agency. It was established in response to 2008 Mumbai terror attack to handle terror-related crimes across state boundaries without requiring state government consent.
इंडिया में एनआईए प्राइमरी फेडरल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। 2008 में मुंबई टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में इस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट टेरर रिलेटेड क्राइम्स को इंडिया में हैंडल किया जा सके। स्टेटस अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री functions under the Ministry of Home Affairs headquarter New Delhi with several regional branches such as Delhi, Kolkata, Chennai। प्रेजेंट में इसके अबाउट 21 ब्रांचेज हो चुके हैं। कॉन्विक्शन रेट मेंटेन अ हाई कॉन्विक्शन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 95.23%। एनआईए का कॉन्विक्शन रेट वेरी हाई है, अबाउट 95.23% इसका कॉन्विक्शन रेट है। की पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनआईए। एनआईए की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या इसके ज्यूरिसडिक्शंस हैं। शो मोडो पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द एनआईए टू इन्वेस्टिगेट एनी शेड्यूल ऑफेंस एनीवेयर इन इंडिया विदाउट अ स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट के विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए से शेड्यूल्ड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करा सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन following the 2019 amendment, the NIA can investigate offenses committed outside India if they target Indian citizens or affect Indian interest। 2019 में अमेंडमेंट के बाद एनआईए को अब इंडिया का आउटसाइड ऑफेंस अगर कमिट किए गए हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कराया जा सकता है इसके थ्रू। Expanded scope in 2019. In addition to terrorism, the NIA now investigates human trafficking, counterfeit currency, cyber terrorism, manufacture or sale of prohibited items, offenses under the Explosive Substance Act 1908। स्टार्टिंग में एनआईए का जो मेन फंक्शन था वो टेररिज्म रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करना था, बट 2019 में अमेंडमेंट के आफ्टर इसके फंक्शंस के स्कोप को ब्रॉड कर दिया गया। अब इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी, साइबर टेररिज्म, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इन सभी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की पावर इसको गिवन की गई। कनेक्टेड ऑफेंसेस एज कन्फर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द एनआईए कैन इन्वेस्टिगेट नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस इफ दे आर कनेक्टेड टू अ शेड्यूल ऑफेंस ड्यूरिंग द सेम इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल एनआईए कोड इंडिया में एनआईए स्पेशल कोड होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्पेशल एनआईए कोड्स ट्रायल ऑफ एनआईए केसेस कंडक्टेड इन स्पेशल एनआईए कोड। एनआईए केसेस का ट्रायल स्पेशल एनआईए कोड के अंदर ही कंडक्ट कराया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट दिस कोड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के कोड को डिजाइन करती है। Appeals against special court order can be made in High Court and are heard by a division bench of 2 judges। स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट लोग जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेज बेंच के द्वारा इसको हियरिंग किया जाएगा।